Now students, we will discuss the different kind of simple permanent tissues. Now as we have discussed that simple permanent tissues, they are of three types. So the first kind of simple permanent tissue is parenchyma. Now ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर कवर करे हैं, आपने एज सच इनको लर्न करना है, समझना है, एंड दे आर sufficient, okay, for you, for your exam point of view. So the parenchyma tissue, the cells of parenchyma, they are most basic and fundamental tissue that is present in the plants. ये आपको abundantly वहाँ पर मिलेगा plants में. जो सबसे ज़्यादा amount में tissue present है वो parenchyma tissue है जो plant का basic structure बना रहा है. Okay, so they are most basic and fundamental tissue of the plants. Now they composed of isodimetric living cell. Very important part. Okay, these parenchymatic cells, they are living cells and they are isodimetric. Iso word means same, dimetric word means diameter. तो ये इसमें जितने भी सेल्स अरेंज्ड हैं उनका जो डायमीटर होगा, उनका जो साइज होगा वो सेम रहेगा. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई दे आर कंपोज्ड ऑफ isodimetric living cells. Okay, now the shape may vary. The cells, they may be of oval shape or round shape. Okay, and they have very poor division activity. Parenchymatic cells की completely division lost नहीं होती, property of division lost नहीं होती. They are having very poor division activity. Okay, now their cell wall is thin. Their cell wall is thin as it is living tissue. तो इसकी cell wall कैसी होगी? Thin होगी and it is made up of cellulose. It is made up of cellulose. Again, second important point. First important point that parenchyma is living cell. Second important point that its cell wall is thin and is made up of cellulose. Okay, now as they are having thin membranes, I have represented in the diagram, thin cell walls are there. So you can watch here that there is large intercellular spaces. इनके बीच में intercellular spaces आपको दिख रहे हैं, they are present. Okay, they have dense and living protoplasm. इनके पास dense protoplasm होता है हर एक सेल के पास. Protoplasm means, it is new term for you. वैसे हमने first chapter में पढ़ा है protoplasm के बारे में. Protoplasm means nucleus plus cytoplasm. Protoplasm means nucleus plus cytoplasm. तो इनका nucleus भी proper होगा and इनमें cytoplasm भी present होगा. Okay, it is distributed in, जब मैंने अभी आपको बताया, it is widely distributed in the plants. So it is present in the stem, leaves, roots, flowers, each and every part. They are also present in xylem and phloem. आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो हमने xylem में xylem parenchyma पढ़ा, phloem में phloem parenchyma के types of cell पढ़े. So both of these simple permanent tissues, they are also present in complex permanent tissues. Okay, some of the cells of parenchyma, they may contain chlorophyll. कुछ एक ऐसे parenchymatic cells होते हैं जिनके पास chlorophyll होती है. Chlorophyll is the green pigment. It is green color pigment which helps in photosynthesis. तो उस स्पेशल टाइप के पैरेनकाइमेटिक सेल को जिसके पास क्लोरोफिल है, that is called as sclerenchyma. That is called as sclerenchyma. क्लोरो वर्ड कहीं पर भी आएगा ना, क्लोरो का मतलब है it is related with the green color. It is related with the green color. Now this parenchymatic tissue in aquatic plants or in hydrophytes, they are having large air cavities. इनके बीच में एयर कैविटीज़, खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके अंदर हवा भर जाती है और हवा भरने से जो प्लांट सेल है
वो ईजिली फ्लोट करता है। ओके, आप देखते हो जब किसी को स्विमिंग नहीं आती तो उसको तैरने के लिए एयर ट्यूब दी जाती है। एयर ट्यूब में एयर फिल्ड होती है तो वो ईजिली सरफेस पे रहता है वाटर के। इन द सेम वे जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो पैरेनकाइमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर भी उसी तरह से लार्ज एयर कैविटीज़ हैं जो उनको वाटर सरफेस पे फ्लोट करने में हेल्प मिलती है जिससे। एंड वो पैरेनकाइमेटिक सेल्स जिनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, दोज टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स दे आर कॉल्ड एज एरेनकाइमा। तो यहाँ पर हमने दो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज पढ़े, वन इज क्लोरेनकाइमा एंड अनदर वन इज एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो पैरेनकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल होती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं एंड दैट हेल्प इन floating. Okay, now in case of xerophytic plants means land plants, वो plants जो land पे grow करते हैं, उनके cells में पैरेनकाइमा, उनके cells में दो तरह की division होती हैं। यानी उनके जो पैरेनकाइमेटस cells हैं, they form special kind of cells called as mesophils. ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है आपको, जो लैंड प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर दो तरह के पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। वन इज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा एंड अनदर वन इज पैलिसेड। ओके, आई एम अगेन राइटिंग इट डाउन। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा and second one is palisade parenchyma. ओके, तो दो तरह के पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं लैंड प्लांट्स में, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा एंड पैलिसेड पैरेनकाइमा। दे बोथ आर इम्पोर्टेंट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे लैंड प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें जो मीजोफिल सेल्स हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं। और कितने टाइप का पैरेनकाइमा होता है? दो टाइप का। वन इज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, सेकेंड वन इज पैलिसेड पैरेनकाइमा। बोथ ऑफ दीज दे आर हेल्पिंग इन photosynthesis in these plants. Now this was the different characteristic features of the parenchymatous cells. आपने इतने ही characteristic features अच्छे से समझने हैं और learn करने हैं. Now we come to the functions of the parenchymatous tissue. अब हमने maximum function, हमने जब इनके characters पढ़े वहीं से हमें hint मिल गई. Okay, the first function of parenchymatous cell is they mainly serve as the food storage tissues. यानी जो parenchyma cells होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है. ओके, सो दे कैन ईजिली स्टोर द फूड. सेकेंड, एज मीजोफिल पैरेनकाइमा हेल्प्स इन फोटोसिंथेटिक. मैंने अभी अभी आपको बताया मीजोफिल दो टाइप के सेल्स हैं पैरेनकाइमा में, स्पंजी एंड पैलिसेड. तो ये दोनों के दोनों किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन, इन एक्वेटिक प्लांट्स as they have special kind of parenchyma named as Parenchyma. I hope कि आप सब इसको recall कर सकते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है, that help in floating. Now another point, parenchyma, it helps in maintaining the turgidity. Now what is turgidity? Turgidity means it is the specific kind. ये एक सेल को एक particular shape देता है. ओके, पर्टिकुलर साइज प्रोवाइड करता है. तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो इंटैक्ट रहती है, वो इन सेल्स को यानी पैरेनकाइमेटस सेल्स को, टिश्यू को एक पर्टिकुलर शेप देने में हेल्प करता है. ओके, नाउ कम्स दिस, इट स्टोर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक. अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी भी क्या करती है, बहुत सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, लाइक गम्स, टैनिन्स, रेजिन्स. दे ऑल आर द इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, और भी अदर काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल दे आर प्रोड्यूस्ड in the plants. So these kind of waste material, they are waste for plants but they are useful for humans.
Human beings, they are using these kind of waste products which are excreted by the plant. So these kind of waste products, they are again stored in the parenchymatous tissue. Clear? Now come, आपको जैसे पता है यहाँ पर गम है, गम को हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं. ओके, टैनिन्स भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, डाइज बनाने में यूज़ होते हैं. क्लियर? Then we come to the next point. They has ability to divide, help in regeneration and wound healing. पैरेनकाइमेटस सेल्स, जब अभी हमने पढ़ा कि ये स्टेम में प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है, तो इन केस अगर वहाँ पर कोई भी इंजरी होती है किसी भी पार्ट को, तो ये उसको, इनके पास सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी होती है डिवाइड करने की कि ये उस पार्ट को हील अप कर सकता है, उस इंजरी को दोबारा से ठीक कर सकता है. सो दे हैव वेरी पुअर एबिलिटी टू डिवाइड. They have very limited, very restricted capacity to divide. So that was the functions of the parenchyma tissue. I hope आपको parenchyma tissue clear हुआ है. Next we move on to the second type of tissue, that is collenchyma. Collenchyma, this is also the living tissue. Again, very important part, it is the living tissue. Now the cells, they are thick walled. हमने parenchyma में पढ़ा, तो parenchyma में thin walled cells थे, यहाँ पर thick walled cells हैं. And this thickening is unevenly. ये ज़्यादातर corners से thick होते हैं cells. जैसे ये मैंने एक cell बनाया, ये दूसरा cell बनाया, तो इसके corners से ये क्या होंगे, thick होंगे. Is that clear? And this thickening is due to the पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. ये जो थिकनिंग है सेल वॉल की, ये जो कॉर्नर्स पे थिकन्ड है सेल वॉल, ये किसकी वजह से है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब जब ये थिक हैं चारों तरफ से, तो क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस दे आर एब्सेंट इन दिस काइंड ऑफ टिश्यू. ओके, मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पर corners thick दिखाए हुए हैं. So this, they don't have intercellular space. Clear? Now they are present on the outer region of stem and leaves. ये ज़्यादातर कहाँ पर present होते हैं, outer region of stem and leaves, यानी बाहर के हिस्सों में present होते हैं. Clear? Now again important point, they are absent in monocot plants. मोनोकोट प्लांट्स मीन्स जो भी ग्रासेस हैं, हमारे सीरियल्स हैं, हमारे wheat, rice, maize, they all are monocot as they are having one cotyledon. Clear? As their seed is having one cotyledon, so that is why they are called as monocot. तो ये मोनोकोट प्लांट्स है, जैसे कि wheat, rice, जितने भी सीरियल्स हैं और ग्रासेस हैं, they don't have this kind of tissue. They don't have this kind of tissue. Clear? So now we move on to the, now you can see the diagram of the collenchymatous tissue. Now we move on to the next part, that is the function of the collenchyma. Now if we talk about the function of collenchyma, as they are present on the outer region of leaves and stem, they provide mechanical support. सबसे बाहर वाले हिस्से में present है, तो automatically बाहर से क्या होगा, कोई भी चीज़ को ये प्रोटेक्शन देंगे ना, सभी तो बाहर प्रेजेंट है. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द फ्लैक्सिबिलिटी टू द डिफरेंट पार्ट्स. यहाँ से बहुत बार मैक्सिमम ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो लीव्स हैं प्लांट में, वो ईजिली एयर में फ्लैटर करते हैं, ईजिली एयर में वेव करते हैं, ऐसा क्यों, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नाउ अगर लीफ फ्लैक्सिबली मूव नहीं कर पाता, तो जैसे ही हवा चलती यहाँ से टूट जाता. तो ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, ये क्या करता है, लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है और ये इस लीफ को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली एयर में वेव कर सके, टूटे ना. तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है. अब कुछ कोलेनकाइमा सेल्स के पास
भी क्लोरोफिल होता है एंड दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा. तो कोलेनकाइमा का सबसे हटके जो फंक्शन है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, और ये लीफ वाला क्वेश्चन मैक्सिमम इसी फॉर्म में पूछा जाता है आपसे. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया. एंड सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेल वॉल की थिकनिंग के ऊपर. यहाँ से सेल वॉल की थिकनिंग कोलेनकाइमा में क्या होगी, पैक्टिन से बनी हुई होगी और कॉर्नर से थिक होगा. पैरेन्काइमा की तो थिन ही है सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं डिफरेंट टिश्यूज के बारे में. और फंक्शंस में हमने पैरेन्काइमा में एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा पढ़ा, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ टिश्यू or the last kind of simple permanent tissue, that is sclerenchyma. Now this sclerenchyma, it is dead tissue. It is dead tissue. अभी तक हमने दो tissues पढ़े simple permanent, दोनों के दोनों they were living, but this sclerenchyma, it is dead tissue. So that is why it is hard and rigid in structure, tough in structure. ओके, नाउ जब ये डेड टिश्यूज हैं, हमने पढ़ा था कि डेड टिश्यूज की वॉल क्या होगी, थिक होगी. सो दे हैव वेरी थिक सेल वॉल ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ अ केमिकल नेम्ड एज लिग्निन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्लेरेनकाइमा की वॉल थिक क्यों होती है, ऐसा क्या है उसकी वॉल के अंदर जो उसको इतना थिक बनाता है. दैट इज द एक्यूमुलेशन, डेपोजिशन ऑफ लिग्निन. इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन इकट्ठा हो जाता है. ओके, सो जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल क्या दिखाई देती है, हमें थिक दिखाई देती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन. नाउ दिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू एज इट इज डेड इन ओरिजिन, ये डेड टिश्यू है, नॉन लिविंग टिश्यू है. सो इसके कारण इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स जनरली. ये क्या करता है, ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज़्यादातर. क्लियर? नाउ दीज sclerenchymatous tissues, they are of two types. The first one is fibers and second one is sclerids. So sclerenchyma tissue is further divided into two parts, fibers and sclerids. अब अगर हम फाइबर की बात करें, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. मैं आपको बताऊंगी साइड बाय साइड कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे. इन फाइबर्स the cells, they are elongated with the pointed end. You can observe the diagram. It is elongated in shape and they have pointed ends. They found abundant in the vascular tissue, stem veins, vascular tissue in stem and veins of leaves. ये ज़्यादातर आपने पढ़ा जाइलम फाइबर होता है, पैरेन्काइमा फाइबर फ्लोएम फाइबर होता है. तो ये ज़्यादातर कंडक्टिंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं. वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं. और लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं जो लीव के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर मिनरल्स को सप्लाई करती है, तो ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इनको हम मार्केट में सेल करते हैं. दैट्स वाई दे आर हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू. अब आपने बहुत सारे फाइबर्स पढ़े हुए हैं, आपने हेम्प के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जूट है, फ्लेक्स है, कॉटन है. दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइबरस टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. तो इन सब की मार्केट में डिमांड है, तो इनको हम मार्केट में सेल आउट करते हैं. सो दे आर हैविंग दीज फाइबर्स, द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर काइंड ऑफ टिश्यूज, दे आर हैविंग इकोनॉमिक value. So if we saw the structure of the fiber, it is elongated and it is having tapering ends, pointed ends, and they are having a cavity inside. इसके बीच में खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. और इसकी जो सेल वॉल है आपको दिख रही है, थिक सेल वॉल है which is made up of lignin. We have already discussed. Okay, so now we come on to the next kind of the sclerenchyma tissue, that is sclerids. Okay,
Sclerids, they are short and rounded thick walled cells. ये क्या थे? elongated with pointed end थे. ये क्या है? short cells होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे cells होते हैं and they are round in shape. Now these sclerids, they are found in fruits and seeds. ये sclerids हमें fruits और seed की walls में मिलते हैं. सो जो भी हार्डनेस है हमारी सीड की कवरिंग की, सीड कोट मीन्स कवरिंग की. अगर आप अखरोट देखते हो, अखरोट का बाहर का जो कवर है बहुत हार्ड होता है. ओके, मूंगफली के बाहर का कवर हार्ड होता है. तो आप चने का दाना देखते हो, चने का बाहर का कवर हार्ड होता है. तो जितने भी सीड्स हैं उनकी जो सीड की कवरिंग हार्ड होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरीड्स. किसकी वजह से हार्ड होती है? स्क्लेरीड्स की वजह से होती है. एंड आप जब फ्रूट खाते हो तो फ्रूट के अंदर, कुछ फ्रूट्स के अंदर आपको ग्रिटीनेस फील होती है, दाने दानेदार वाला सब्सटेंस फील होता है कि जब आप उसको चबाते हो तो चबाते टाइम आपको ऐसा लगता है कि उसमें दाने दाने आ रहे हैं. जैसे एप्पल को खाते हो, एप्पल को जब खाते हो तो एप्पल में आपको रफ रफ स्ट्रक्चर्स फील होते हैं. ठीक है, आप क्या खाते हो? आप गुआवा खाते हो तो गुआवा को खाने में भी आपको रफ रफ स्ट्रक्चर फील होता है. ठीक है, आप नाशपाती खाते हो, नाशपाती को खाते हुए भी आपको ग्रिटीनेस फील होती है. तो ये जो फ्रूट की ग्रिटीनेस है, ये जो दानेदार वाली फीलिंग है फ्रूट में, ये भी किसकी वजह से होती है? इन स्क्लेरीड्स की वजह से होती है. सो द इम्पोर्टेंस, सो द फंक्शन ऑफ स्क्लेरीड इज इट प्रोवाइड द हार्डनेस टू द सीड. क्लियर? तो ये सीड के कवर में प्रेजेंट है and they are present in the fruit, so they help in providing grittiness in the fruit. And what is the second name of the sclerids? They are also called as the stone cells or grit cells. Grit word होते हैं छोटे 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 दाने. ओके, तो they are also called as grit cells, stone cells or sclerids. तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है एक तो डिफरेंस का. क्लियर? What is the difference between fiber and sclerids? Second जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि how the fibers, they are economic, they are having economic value. Fibers, they have economic value because we can sell out hemp, jute, flax and cotton. या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन में कौन सा टिश्यू है, जूट में कौन सा टिश्यू है. सो योर आंसर विल बी फाइबर और स्क्लेरेंकाइमा. ठीक है, आंसर में आप स्क्लेरेंकाइमा लिखकर ब्रैकेट में लिख दोगे फाइबर. क्लियर? इन द सेम वे यहां से क्वेश्चन क्या आएगा स्क्लेरीड्स में से कि ग्रिटीनेस ऑफ द फ्रूट इज ड्यू टू विच काइंड ऑफ टिश्यू. सो अगेन योर आंसर विल बी स्क्लेरेंकाइमा एंड इन ब्रैकेट यू विल राइट स्क्लेरीड्स. ओके, that sclerids part of sclerenchyma, they are responsible for giving the grittiness to the fruit. ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीड हार्ड कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं? अगेन sclerenchyma, sclerids. So if you saw the structure of sclerid cells, you can see they are short, rounded and they are thick walled. So that was all about the simple permanent tissue. ओके, सो आई होप आपको तीनों टिश्यूज क्लियर हो गए हैं एंड तीनों के बीच में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया है. द डिफरेंस इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. तो आप वहाँ से इन तीनों के डिफरेंस को भी प्रिपेयर करोगे बिकॉज दैट डिफरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. ओके, कि और कौन से क्वेश्चंस डिफरेंस के अलावा इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. So that was all about today's topic. Thank you.